کو نصرت فرما، اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما، اور ہم سب کو اپنے بندوں کو قرآن کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرما، شریعت کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ شرعی احکام کو عام کرنے کی توفیق سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ جن جن ساتھیوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں تعاون کیا ہے ان سب کو اپنی شایان شان اجر عظیم سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے مستقبل کو روشن فرما، امارت شرعیہ کے کام کو صحیح رخ پر کرنے میں ہماری مدد فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ السلام علیکم سامعین، 19 جمادی الاولیٰ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 10 نومبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے امارت شرعیہ یو پی کے زیر اہتمام 2 روزہ تربیتی کیمپ۔ یہ تربیتی کیمپ محاکم شرعیہ کے منتظمین کے لیے انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ماشاءاللہ 48 اضلاع کے مفتیان اور قاضیوں نے شرکت کی ہے۔ یہ ویڈیو آپ نے سن لی، یہ صوبائی امیر شریعت حضرت مولانا ارشد رشیدی ہیں جو کیمپ کے اختتام پر دعا کرا رہے ہیں۔ یہاں اس کیمپ میں منگار نے اس موقع پر نائب امیر شریعت مولانا محمد اشفاق اعظمی کا ایک تفصیلی انٹرویو بھی لیا ہے جو میں آخر میں پیش کروں گا۔ یہاں امیر شریعت مولانا ارشد رشیدی، ادھر ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا سلمان منصور پوری دامت برکاتہم، مفتی محمد عفان منصور پوری، شیخ الحدیث مولانا کلیم اللہ، دہلی امارت شریعہ سے مفتی ذکاوت صاحب، مفتاح العلوم جلال آباد سے مولانا آرزو میاں صاحب، مفتی اویس، قاری محمد یامین اور مفتی بنیامین سمیت 48 اضلاع کے علماء شریک رہے ہیں۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں مفتی محمد طیب، مولانا محمد تحسین، مفتی محمود نے اہم رول ادا کیا ہے، اور جامعہ کے شیخ الحدیث اور ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن حضرت مولانا محمد عاقل قاسمی دامت برکاتہم نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سردست میرے پاس یہی انٹرویو ہے، اور میں انشاءاللہ اس معاملے میں ایک اگلا بلیٹن کل یا پرسوں پھر تفصیلی جاری کروں گا۔ مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے مشہور دینی ادارہ جامعہ بدرالعلوم بڑی دولت میں ہے، جہاں حضرت مولانا مفتی اشفاق اعظمی نائب امیر شریعت اتر پردیش میرے پاس تشریف فرما ہے، اور یہاں ماشاءاللہ گزشتہ روز سے ہمارے شریعہ کا پروگرام چل رہا ہے، یہ تربیتی پروگرام چل رہا ہے۔ تو مولانا صاحب آج کا جو پروگرام ہوا ضرور ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، امارت شرعیہ ہند کی طرف سے مسلمانوں میں جو نزاعی معاملات ہوتے ہیں ان کو ثالثی کی بنیاد پر باہم افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، اس کا ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے جس کا نام ہے محکمہ شرعیہ۔ یہ محکمہ شرعیہ مختلف اضلاع میں قائم کیا جاتا ہے اور بہت سارے محاکم شرعیہ قائم ہیں۔ یہ آج کا پروگرام امارت شرعیہ اتر پردیش کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یہ امارت شرعیہ تمام صوبوں میں قائم ہے، امارت شرعیہ اتر پردیش ہے، امارت شرعیہ مہاراشٹر ہے، اس طرح سے قائم ہے۔ اسی کے تحت یہ دوسرا پروگرام ہے کہ جو محاکم شرعیہ میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تربیت کا یہاں انتظام کیا جائے، یعنی اس کے طریقہ کار، اس کی نزاکتوں کو اس کو کس طرح سے کیا جائے ان کو بلایا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ ایک مقصد اس کا یہ رہا جس میں مختلف لوگوں نے مختلف عنوان پر گفتگو کی۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو اضلاع ہیں ان اضلاع میں دونوں جمعیت کے لوگ اس پروگرام میں اکٹھا ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں مل کر کے اس پروگرام کو چلاتے ہیں۔ تو جن اضلاع میں محکمہ شرعیہ قائم نہیں ہے وہاں قائم کرنے کی کوشش کی جائے، لوگوں کو بیدار کیا جائے۔ یہ دوسرا مقصد اس کا تھا۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر، عامت المسلمین کے اندر بیداری پیدا کی جائے کہ مسلمان چاہے وہ فریق اول ہو، چاہے وہ فریق ثانی ہو، چاہے وہ مدعی ہو، چاہے وہ مدعا علیہ ہو، وہ اسلام کے مطابق اپنے تمام نزاعی معاملات کو حل کرنے کے لیے تیار ہو، جذبہ پیدا ہو، تاکہ جو بیجا اخراجات ہیں، یہ جو ضلع شاملی مظفر نگر ہے، غازی آباد، مراد آباد ہے،
तो क्या जिला सतह पर महकमा शरिया कायम होगा? कायम हैं बहुत से, जैसे अभी फुलत में कायम है, आपके बिजनौर में कायम है, कम से कम 30 महकमे शरिया है जो इस वक्त कायम है और काम कर रहे हैं। फुलत में मेरे ख्याल में वो मुस्लिम फैसला बोर्ड का है। अब मैं नहीं बता सकता, ये बता रहे हैं। ये हमारे महकमे शरिया जी, हमारे महकमे शरिया जो है वो जो महकमे शरिया के नाम से कायम है, उनके काम करने का अंदाज ज़रा उससे हट करके है। ये जो निकाह को तोड़ने का अमल होता है, इसमें सह रुकनी यानी 3 की कमेटी काम करती है और ये तीनों के इत्तेफाक राय से होता है। तो इसमें अगले को मुतमईन करने का ज़्यादा मौका होता है, उस पर इल्ज़ाम लगाने का मौका कम होता है। इस तरह से हमारे यहाँ काम होता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो है यहाँ सहारनपुर में कायम करने की बात हुई और ये यहाँ शामली में कायम करने की बात हुई। बहुत सारी जगहों पर 4-5 जगहों पर कायम करने का लोगों ने इरादा किया है, इंशाल्लाह कायम होगा। दूसरा ये कि जो जिला सतह पर जो भी इस मामले को अंजाम देगा, एक रहनुमा होगा, एक रहबर होगा, उसकी इल्मी सलाहियत क्या होगी? उसके अंदर हमारे यहाँ एक ज़ाब्ते अमल है महकमे शरिया का, उसके अंदर कम से कम 3 आदमी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 आदमी रह सकते हैं। वो उनके औसाफ वही होने चाहिए जो शरीयत के अंदर है। वो अमानतदार हो, दयानतदार हो, आदिल हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, मामला फहम हो और लोगों को, दोनों फरीक को अच्छी तरह से ज़ाब्ते के मुताबिक मौका दे। ये उसके लिए पाबंदियाँ हैं, इसको तलाश किया जाता है, फिर उनकी तरबियत की जाती है। धीरे धीरे वो अपने अमल में माहिर हो जाते हैं। मेरा सवाल ये था कि उनकी इल्मी सलाहियत क्या होगी? इनमें सलाहियत में कम से कम आलिम होना चाहिए या मुफ्ती होना चाहिए, ताकि वो कानून से वाकिफ़ हो। यानी कोई मसला आता है तो किसी सिलसिले में शरीयत क्या कहती है, इससे वाकिफ़ हो। 2 आदमी ज़रूरी हैं कि आलिम और मुफ्ती हो। एक आदमी अगर नहीं है आलिम, तब भी वो दीनदार हो, मामला फहम हो, तो काम चल जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि निज़ाम क़ज़ा है और निज़ाम इफ्ता है, इनमें एक बड़ा फ़र्क है। तो निज़ाम क़ज़ा को इस तरह ढालने के लिए क्या उस मुताल्लिक़ा शख्स की कोई कहीं ट्रेनिंग का तरबियत का निज़ाम है, तो 2-4 महीने उसकी ट्रेनिंग हो जाए? जी हाँ, इस तरह का तरबियती निज़ाम हमने रखा है। एक तो उमूमी निज़ाम ये है जो कि बुलाया जाता है और एक मजमूई तौर पर उनको सिखाया जाता है कि आपको इस तरह से करना है। दूसरे मरकज़ में निज़ाम है कि जो लोग ये कायम करना चाहते हैं तो अमारत शरिया हिंद के अंदर जो है उनको बुला करके उनको समझाया जाता है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सदफ सेंटर में ये इंतज़ाम है कि जो लोग आते हैं उनको तरीक़ाकार बताया जाता है। जब इत्मीनान हो जाता है तो उनको ये काम से पूछ दिया जाता है। जब आप उन्हें ट्रेनिंग देंगे, उनकी तरबियत करेंगे, तो हमारे यहाँ कौन सी किताब पेश नज़र होगी जिसे उन्हें पढ़ाएंगे या उनकी तरबियत करेंगे? क्या किताब? वो देखिए, फ़िक़्ह में जो मसाइल हैं, जब मुफ्ती होगा तो वो किताबें पढ़ करके आता है, कोई किताब नहीं होती है। सिर्फ एक अल-हीलतुन नाजिज़ा है जो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की है, जिसमें उन मसाइल में जिनमें फ़िक़्ह हनफ़ी से रुजू करके फ़िक़्ह मालिकी के शराइत को रखा जाता है, उस किताब के सिलसिले में रहनुमाई की जाती है कि फ़स्ख़ के मसाइल, निकाह तोड़ने के मसाइल, उस किताब को समझें और उस किताब की रोशनी में वो हल करें। इस किताब का अल-हीलतुन नाजिज़ा का जी, उसमें मफ़क़ूद शोहर का तज़किरा है। मेरी मालूमात है कि और तज़किरा उसमें नहीं, उसके ज़िम्न में सब कुछ है। उसके अंदर 11 चीज़ें हैं, असबाब इसी ज़िम्न में है, इसी ज़िम्न में सारी चीज़ें अलग नहीं है इससे जी। तो और कौन सी किताब ट्रेनिंग में है इसके अलावा? बस वो सारी चीज़ें फ़िक़्ह की जितनी किताबें हैं उन किताबों में मसला मौजूद है। वो जो किताबों में फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक मसला है, उसी के मुताबिक यहाँ भी होता है। सिर्फ क़ज़ा के लिए, फ़ैसले के लिए जो है फ़िक़्ह मालिकी की शराइत का लिहाज रखा जाता है। बकिया अलग से किसी इल्म की ज़रूरत नहीं है। वही जो हमारा इल्म है, जो हमने इफ्ता में पढ़ा है, वही सारा इल्म हमारा यहाँ काम होता है। देखिए कि इफ्ता की जो अब सनद मिल रही है, एक किसी इदारे के मुफ्ती को जहाँ सनद आपके यहाँ मुस्तंद मान ली गई, उनमें दारूम है, शाहीन मुलाबाद है, मदायलूम है। मतलब ये है कि ये अलग तरतीब है, हम उसको बनाते हैं। अच्छा। पहले से वो बनाया नहीं आता। मुफ्ती आप मानते हैं? जी, जो भी रहता है उसकी सलाहियत, जो दारूम से रहेगा उसको 1 नंबर का कहेंगे, जो फिर मज़ाहिब का रहेगा, जो शाही का रहेगा, तो उसकी सलाहियत को हम देखते हैं, सलाहियत पर एतमाद करते हैं। अगर नहीं है तो फिर उसको सलाहियत वाला हम बनाते हैं। तरबियत का मतलब तो यही होता है, बनाया कोई हमें नहीं मिल जाएगा, हमें तो बनाना पड़ेगा, तैयार करना। आजकल कुछ लोगों ने, ये सब लोग जानते होंगे
एक ऑनलाइन इफ्ता का निज़ाम कायम किया है, तो क्या वो भी आपके यहाँ चलेगा? नहीं, हमारे यहाँ ऑनलाइन इफ्ता का कोई निज़ाम हमारे यहाँ नहीं है। इफ्ता और कज़ा के अंदर फ़र्क ये है कि इफ्ता में मसाइल की बुनियाद पर शरई रहनुमाई की जाती है और कज़ा के अंदर दोनों फरीक की बात सुन करके रहनुमाई की जाती है। तो जब दोनों की फरीक बात की सुनेंगे तो उसको ऑनलाइन का मसला ही नहीं है। यहाँ तो हियरिंग होती है, दोनों की बात सुनी जाएगी, क्रॉस क्वेश्चन होगा और वो हक़ाइक़ तक हक़ तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी। तो वो शोबा ऑनलाइन का अलग है, ये तो प्रैक्टिकल अमली शोबा है। मदारिस दारुल देवबंद में मुताला शामी के नाम पर 2-3 साल से रखे गए हैं, तो क्या उस मुफ्ती को ज़्यादा तरजीह होगी? कोई ऐसा हो जो 4 साल शामी का मुताला कर चुका हो, 2 साल इफ्ता पढ़ चुका हो, 6 साल लगा चुका हो, उसकी कोई तरजीह है? तो उसकी तरजीह अभी ये बात आई थी कि मदारिस के अंदर कज़ा के सिलसिले में भी एक शोबा कायम किया जाए। जिस तरह से इफ्ता के लिए है उसी तरह से शोबा कज़ा कायम किया जाए और उन्हीं किताबों में से जो कज़ा के अबवाब हैं उन पर खुसूसी महारत उनको दी जाए और खुसूसी तरबियत दी जाए। इंशाअल्लाह ये काम भी आएंगे। आखिर में एक सवाल ये रह गया कि आपके या हमारा जो निज़ाम शरीयत चल रहा है फिलहाल वो तो काहिरा नहीं है, इसके अदम मौजूदगी में किस तरह फैसले कर पाएंगे? देखिए, वक़्त काहिरा की ज़रूरत भी नहीं हमारे यहाँ है, इसलिए कि हम मुतबादिल अदलिया अगर कायम करना चाहते हैं, हमने तो इस मुल्क के कानून को खुद बनाया है और इस मुल्क की वफादारी हम खुद कर रहे हैं। इसलिए कानून का एहतराम तो हमारे सीने के अंदर है। कानून के अंदर हमें इख्तियार दिया गया है कि हम मुस्लिम पर्सनला के मसाइल को हम उन बुनियादों पर जो बुनियादें सरकारी हैं उन्हीं बुनियादों पर हम हल कर सकते हैं। कानून में हमें इजाज़त दी गई है कि हिंदुस्तान का हर शहरी, चाहे वो मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखता हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसे सालिस बना करके, किसी को अपने मामले के लिए हकम बना करके, सालिस बना करके वो फैसला करा सकता है और वो फैसला हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक काबिल कबूल होगा। इन्हीं बुनियादों पर हम काम करते हैं ताकि हम जो बोझ है उस बोझ को हल्का कर सकें और हम जो है वो सरकार का जो निज़ाम है उसमें मुआविन बन सकें। ये हमारे यहाँ मजहबी आज़ादी की बुनियाद पर और कानूनी निकात की बुनियाद पर हमें यह हक़ हासिल है। सामीन, जैसे कि आपने हज़रत वाला सुना है, ये कोई मुतबादिल निज़ाम नहीं है बल्कि एक मुआविन निज़ाम है ये, और ये तरफ़ैन की रज़ामंदी के साथ होता है और हुक्म इलाही की बुनियाद पर होता है। इस सिलसिले में आपको कोई और कुछ पूछना हो तो आप कमिटमेंट पूछ सकते हैं।